السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو بہت ہی خاص ہونے والی ہے۔ اگر آپ کی دعائیں سال بھر قبول نہیں ہوئی، اگر کچھ چیزیں آپ کو سالوں سے ناممکن لگ رہی ہیں، تو آپ یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ یہ خاص دن کے بارے میں ہے، اس کی فضیلت کے بارے میں ہے، یعنی یوم عرفہ۔ یوم عرفہ کیا ہے اور کیوں اتنا خاص ہے، اور اس میں دعائیں کب اور کیسے مانگنی چاہیے، اور دعاؤں کی قبولیت کے لیے یہ اتنا خاص کیوں ہے۔ آخر تک آپ نے ویڈیو ضرور دیکھنی ہے۔ کبھی غور کرنا، کتنا مہربان ہے نا ہمارا پاک پروردگار۔ اگر کبھی زندگی کی تقسیم میں ہمارے حصے میں دکھ آ جاتے ہیں، تکلیفیں آ جاتی ہیں، تنہائیاں آ جاتی ہیں، آزمائشیں آ جاتی ہیں، انتظار آ جاتا ہے، آنکھوں میں نمی، دل میں بے چینی اور دعا میں لمبی خاموشیاں آ جاتی ہیں، تو وہی رب اپنی رحمت کی تقسیم میں ہمارے لیے کچھ خاص دن بھی رکھتا ہے، کچھ خاص ساعتیں، کچھ خاص لمحے، جن میں بندہ اگر ٹوٹ کر بھی اس کے در پر آ جائے تو یقیناً وہ خالی نہیں لوٹتا، کیونکہ جب انسان اپنا درد، اپنا بوجھ، اپنی بے بسی، اپنے آنسو اپنے رب سے بانٹتا ہے نا، تو عجیب سا سکون ملتا ہے۔ دکھ شاید فوراً ختم نہ بھی ہو، مگر دل ہلکا ہو جاتا ہے، روح کو جیسے کوئی سہارا مل جاتا ہے۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ کو یہ بات بہت پسند ہے کہ اس کا بندہ اس سے مانگے، بار بار مانگے، رو کر مانگے، ٹوٹ کر مانگے، یہاں تک کہ جب ساری دنیا کے دروازے بند ہو جائیں تب بھی اس کے در پر دستک دیتا رہے، کیونکہ کبھی کبھی جو دکھ ہمارے حصے میں آتے ہیں نا، وہ صرف تکلیف دینے نہیں آتے، وہ ہمیں اللہ کے قریب کرنے آتے ہیں، تاکہ ہم اپنے پاک پروردگار سے بات کریں، اس سے پکاریں، اس سے مانگیں، اور پھر وہ اپنی رحمت کے کچھ ایسے موسم کھول دیتا ہے، کچھ ٹھنڈی ہوائیں بھیجتا ہے، کچھ امیدوں سے بھری بوندا باندی بھیجتا ہے، جو عام دنوں جیسی نہیں ہوتی۔ سال بھر میں کچھ دن ایسے آتے ہیں جن کی فضیلت عام دنوں سے بھی بہت بڑھ کر ہوتی ہے۔ کچھ راتیں ایسی آتی ہیں جن میں دعائیں کچھ زیادہ سن لی جاتی ہیں، اور انہیں بابرکت دنوں میں ایک ایسا دن بھی آتا ہے جسے مانگنے والوں کا دن کہا جائے تو غلط نہ ہو، رونے والوں کا، امید رکھنے والوں کا دن، اور برسوں سے دعا مانگنے والوں کا دن۔ وہ دن ہے یوم عرفہ، ایک ایسا دن جو حج کا سب سے اہم دن کہلاتا ہے، ایک ایسا دن جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اللہ کے حضور دعا کی خاص اہمیت ہوتی ہے، رحمت کے دروازے جیسے زیادہ کھل جاتے ہیں، اور بندہ اپنے رب کے قریب ہونے کی ایک عجیب سی کیفیت محسوس کرتا ہے۔ مگر آخر یوم عرفہ ہے کیا؟ کیوں اس دن کو اتنی عظمت دی گئی؟ کیوں اسے اتنی فضیلت والا دن کہا گیا؟ کیوں کہا جاتا ہے کہ اگر کبھی دل کھول کر مانگنا ہو تو یہ دن خالی نہیں دینے جانا چاہیے؟ اور کیا واقعی جو لوگ بہت صبر کر چکے ہیں، بہت رو چکے ہیں، بہت انتظار کر چکے ہیں، ان کے لیے بھی اس دن میں کوئی خاص راز چھپا ہے؟ آئیے آج دل کے ساتھ سمجھتے ہیں یوم عرفہ کیا ہے۔ اگر سادہ الفاظ میں اسے سمجھیں تو یہ 9 ذی الحجہ کا دن ہے، اور حج کا سب سے اہم دن۔ یہ وہ دن ہے جب دنیا بھر سے آئے ہوئے حاجی میدان عرفات میں کھڑے ہوتے ہیں، اپنے رب کے حضور، اپنی دعاؤں کے ساتھ، اپنی امیدوں کے ساتھ، اپنے آنسوؤں کے ساتھ۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب بندہ اور رب کے درمیان فاصلہ کم ہو جاتا ہے۔ اس دن کو عبادت، دعا، استغفار، اللہ سے راز و نیاز کا دن کہا جاتا ہے۔
ये सिर्फ इबादत का दिन नहीं, दिल खोल कर मांगने का दिन है। और अल्लाह ताला से मांगना बहुत बड़ी इबादत है। और फिर इस दिन की एक और ख़ूबसूरत बात जानते हैं आप, ये दिन साल में सिर्फ एक मरतबा आता है, सिर्फ एक मरतबा। सोचिए, कुछ मौक़े ऐसे होते हैं जो बार बार नहीं मिलते, और यौम अरफा भी इन्हीं कीमती मौक़े में से एक है। एक ऐसा दिन जिसके बारे में अहले मारिफत कहते हैं, अगर कभी अपने रब से दिल खोल कर मांगना हो तो यौम अरफा को खाली ना जाने देना। अगर दिल में कोई बरसों की दुआ है, अगर कोई गम बहुत लंबा हो गया है, अगर कोई इंतज़ार आपको थका चुका है, अगर आप बहुत सब्र कर चुके हैं, अगर आपने बहुत आंसू बहाए हैं, तो आपके लिए ये बहुत ही ख़ास दिन है जब आपको अपने रब से खुलकर बात करनी चाहिए। अपनी हाजत, अपना मकसद, अपनी ख्वाहिश, अपना दर्द अल्लाह की बारगाह में ज़रूर पेश कीजिए, क्योंकि मांगने से पहले ही हार मान लेना ये तो अपने रब की रहमत पर यकीन ना करने वाली बात है। और हमारा रब बहुत करीम है, बहुत सुनने वाला है, बहुत करीब है। लेकिन एक बात जो दिल को हिला दे, बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो इस दिन को एक आम दिन समझकर गुजार देते हैं। ना दुआ, ना इस्तग़फ़ार, ना कोई ख़ास इबादत, ना दिल की बात, और फिर ये कीमती दिन खामोशी से गुज़र जाता है। बिल्कुल ऐसे जैसे कोई दरवाज़ा खुला हो और इंसान उसके पास से गुज़र जाए और उसे खटखटाए भी ना। लेकिन खुश नसीब होते हैं वो लोग जो इस दिन को पहचान लेते हैं, जो कहते हैं या अल्लाह, ये दिन कबूलियत का दिन है, ये दिन मुझे मेरी दुआओं की कबूलियत तक ले जाएगा, ये दिन मेरी आजमाइशों को ख़त्म करेगा, इस दिन मेरी फरियाद सुन ली जाएगी, इस दिन मेरी किस्मत के बंद दरवाज़ों पर तेरी रहमत दस्तक देगी। आखिर इस दिन में ऐसी क्या ख़ास बात है? इस दिन सिर्फ मांगना नहीं चाहिए, अल्लाह से रो रो कर मांगना चाहिए। अगर ये रहमत, दुआ और मग़फ़िरत का अजीम दिन है तो फिर इस दिन को गुजारना कैसे चाहिए? सबसे पहली बात, इस दिन को आम दिन मत समझिए। अपने दिल को पहले से तैयार कीजिए, अपनी हाजतों के बारे में सोचिए, अपनी दुआएं लिख लीजिए। वो दुआएं भी जो आप बरसों से दिल में लिए बैठे हैं, वो ख्वाहिशें भी जिन्हें आपने शायद लोगों से कहना छोड़ दिया, वो दर्द भी जो सिर्फ अल्लाह जानता है। यौम अरफा कबूलियत का दिन है। इस दिन ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा इस्तग़फ़ार, तौबा, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी है। और सिर्फ दुनिया नहीं, अपनी आखिरत भी मांगनी है। अपने रिज़्क़, अपनी औलाद, अपनी सेहत, अपनी बेसुकूनी, अपने गम, अपनी तन्हाई, अपने इंतज़ार, सब कुछ अल्लाह के हवाले कर दीजिए। और हाँ, इस दिन एक बहुत खूबसूरत अमल दुआए अरफा भी है, ख़ास तौर पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मनक़ूल दुआए अरफा, जिसे बहुत रूहानी और दिल को बदल देने वाली दुआ कहा जाता है। अगर मुमकिन हो इस दिन दुआए अरफा ज़रूर पढ़िए। हत्ता कि अगर पूरी ना पढ़ सकें तो कुछ हिस्सा ही सही दिल के साथ पढ़िए, क्योंकि बाज़ दुआएं सिर्फ ज़ुबान से नहीं, रूह से पढ़ी जाती हैं। और इंशाअल्लाह दुआए अरफा, इस पर हम अलग से बात करेंगे, क्योंकि वो खुद एक समंदर है। मगर एक बहुत अहम बात अभी बाकी है, क्या यौम अरफा में वाकई दुआएं कबूल होती हैं? अगर आप बरसों से दुआएं मांग रहे हैं तो इस दिन आपको अपने रब से कैसे मांगना चाहिए?
यौम अरफा एक तारीख नहीं है, ये मांगने का दिन है, रोल लेने का दिन है, अपने रब से दिल खोलकर बात करने का दिन है। ये वो दिन है जब 9 ज़ुल्हज्जा को दुनिया भर से आए हुए लाखों हाजी मैदान अरफात में जमा होते हैं, सफ़ेद एहरामों में। ना कोई बादशाह, ना कोई गरीब, ना कोई बड़ा, ना कोई छोटा, सब एक जैसे, सब अपने रब के सामने अपने गुनाहों के साथ, अपनी उम्मीदों के साथ, अपनी दुआओं के साथ, और फिर वो हाथ उठाते हैं और कसरत से दुआएं मांगते हैं, रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, माफ़ी मांगते हैं और रहमत मांगते हैं, क्योंकि ये हज का सबसे अहम दिन माना जाता है। एक ऐसा दिन जिसमें बंदा अपने रब के सबसे करीब महसूस करता है। और ज़रा सोचिए कितनी अजीम बात है कि अल्लाह ताला ने अपने घर के मेहमानों को, अपने ख़ास बंदों को अपनी बारगाह में बुलाया। वो खुश नसीब लोग जो वहाँ पहुँच जाते हैं, जो बैतुल्लाह की सरज़मीन पर मैदान अरफात में खड़े होकर अपने रब से दुआएं मांगते हैं। अल्लाह ताला हमें भी एक दिन उन खुश नसीबों में शामिल फरमाए, आमीन। मगर अगर हम वहाँ नहीं जा सके तो क्या हम महरूम हैं? हरगिज़ नहीं, क्योंकि हमारा रब सिर्फ मक्का में सुनने वाला रब नहीं, वो यहाँ भी सुनता है, आपके घर में भी सुनता है, आपके कमरे में भी सुनता है, आपके आंसू भी देखता है, आपकी खामोशियाँ भी सुनता है। और बहुत से लोग घर बैठे यौम अरफा की फ़जीलत को समझते हुए दुआ, इबादत, इस्तग़फ़ार, तौबा और ज़िक्र के ज़रिए बहुत सा सवाब कमा लेते हैं, अपने पाक परवरदिगार को राज़ी कर लेते हैं। क्या मालूम मैदान अरफात में कोई हाथ उठाए और यहाँ आप अपने कमरे में अपने जाए नमाज पर बैठे अपने रब से टूट कर मांग रहे हों, और अल्लाह आपकी दुआ भी उसी रहमत वाले दिन में सुन ले, क्योंकि रब के ख़जाने किसी एक जगह तक महदूद नहीं होते, बस मांगने वाला दिल सच्चा होना चाहिए। सिर्फ 9 ज़ुल्हज्जा का दिन ही ख़ास नहीं है, बल्कि ये पहले 10 दिन बहुत ही ख़ास हैं, बहुत ही ख़ास हैं। जो 9 ज़ुल्हज्जा से पहले के दिन हैं, उनमें आप तैयारी करें। उस दिन अपने पाक परवरदिगार से मांगने की कि आपने क्या मांगना है, कैसे मांगना है, कितना मांगना है। अल्लाह के ख़जाने बहुत वसी हैं, जितना मांग सकते हो मांगो। इसीलिए पहले से ही तैयार रखो अपनी दुआओं को, अपनी इबादतों के बारे में पहले से ही तैयारी कर लीजिए कि मैंने कौन कौन सी दुआ पढ़नी है। और 9 ज़ुल्हज्जा का रोज़ा भी बड़ा ख़ास है। अगर आप रोज़ा रख सकते हैं आसानी से तो आप रोज़ा भी ज़रूर रखें, क्योंकि रोज़े की भी बहुत बड़ी फ़जीलत है। ये जहन्नुम से आज़ादी का दिन है। पता है अल्लाह ताला ने एक रात के बारे में फरमाया कि 1000 रातों से बेहतर लैलतुल क़द्र, लैलतुल क़द्र पोशीदा है, लेकिन यौम अरफा हमारे सामने है, साल का सबसे बड़ा दिन। इस दिन की दुआएं कबूल होती हैं, मौजज़े होते हैं, गुनाह माफ़ होते हैं, रहमतों की बरसात होती है। आप इस दिन को ज़ाया मत होने दें, ये आपकी हमारी बख्शिश का दिन है। यौम अरफा बहुत ही करीब है। अब वक्त है कि अपनी दुआओं में हर हद से बढ़कर उम्मीद रखी जाए। अल वहाब से वो भी मांगे जो लोगों को नामुमकिन लगता हो। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ऐसी बादशाहत मांगी जो उनके बाद किसी को नसीब ना हो। जब अल्लाह ताला उन्हें ऐसी अजीम सल्तनत अता कर सकता है तो वो आपकी पूरी ज़िंदगी भी बदल सकता है। अपने रब से मांगने में झिझक महसूस ना करें, उसकी रहमत और ख़जाने बेहद वसी है। आखिर में दुआ आमीन ज़रूर कहिएगा।
या अल्लाह हमें यौम अरफा देखने की तौफीक अता फरमा, हमारे रोज़े और नेक अमाल कबूल फरमा, हमारे गुनाहों को मुआफ़ फरमा और हमें जल्द ही हज करने वालों में शामिल फरमा। और जो हम यौम अरफा आपके घर से दूर लेकिन आपके करीब अपने घरों में देखें, उसको हम अच्छे से गुजारें, इबादत में गुजारें और हमें तौफीक अता फरमा कि हम आपसे दिल खोल कर मांगें, आपको राज़ी करने की हर मुमकिन कोशिश करें। या अल्लाह पाक हमें तौफीक अता फरमा कि हम तेरे करीब आ सकें, अपने गुनाहों की माफ़ी मांग सकें। या अल्लाह पाक हमें यौम अरफा नसीब भी फरमा और कुन फायकुन के मौजज़े भी दिखा। आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।